السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح 9 میں خوش آمدید. اور سب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آج ہمارے پروگرام میں آبویسلی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو پچھلے دنوں کراچی میں ہوا. اور پچھلے دنوں کیا بہت زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، 1 یا 2 دن ہی گزرے ہیں جو بچے اپنے اسکول کے ساتھ پکنک پہ گئے تھے. اور وہاں پر بجائے اس کے کہ وہ خوشی سے واپس لوٹتے، وہ بڑا ہی برا ان کے ساتھ ہوا. 3 سے 4 بچے جو ہیں ان کی جان چلی گئی کیونکہ پانی میں ڈوب کر جو ہمیں پتا ہے obviously کراچی میں رہنے والے ہیں، جو لوگ یہاں آ چکے ہیں اور سی سائڈ جا چکے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ اس بات پہ اس کے لیے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اس اپنی پکنک کو لے کر کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا آگے جا رہے ہیں. ہمیں ہیروئزم میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہیروئزم ہم میں ایک ایسا فیکٹر ہے جو ایڈونچر میں تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ایڈونچر کرتے وقت ہم ہیروئزم دکھاتے ہیں، لیکن جہاں دکھانے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم وہاں ہم نہیں دکھاتے ہیں. تو خیر یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے، ماں باپ کو اس میں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، اسکول والوں کو اس میں کافی پریکاشنس لینے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اس پہ مگر میں اکیلے یا آپ اکیلے کامنٹ کریں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں باقاعدہ ترتیب رکھی ہے کہ ہمارے فرسٹ آور میں ہم اس حوالے سے ڈسکشن کرنے والے ہیں، یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس حوالے سے بھی. اور پھر اسکول بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ہمیشہ یہ مسحب وغیرہ کا ایک لیٹر سائن کرا لیتے ہیں، تو پھر لے کر ہی کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی ڈیو کیئر نہیں کرنی ہے اور پیرنٹس سے یہ لکھوا لینا ہے کہ جی کسی بھی حادثے کی صورت میں اسکول ذمہ دار نہیں ہوگا، تو پھر آپ لے کر ہی کیوں جا رہے ہیں؟ اور سی سائڈ کے علاوہ بے تحاشی جگہ ہے جہاں آپ بچوں کو لے جا سکتے ہیں، اور اس کا موقف ہونا چاہیے فیلڈ ٹرپ، یعنی وہ فیلڈ جہاں وہ بہت زیادہ نہیں جا پاتے ہیں خود سے، وہاں وہ چلے جائیں آپ کے ساتھ. وہ کسی بسکٹ کی فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کے ان کو نالج ملے، کیونکہ اسکول کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. سی سائڈ پہ یا باقی جگہوں پہ تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی چلے جائیں گے. ایسا پلان ہی کیوں کرنا جہاں خطرہ ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے بھی کی ہے کیونکہ جب ہم نے یہ سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے میں کچھ اپنی جاننے والوں سے بات کر رہی تھی. کچھ اسکول ایسے ہیں کراچی میں کہ اگر پیرنٹس جا کے ان سے کہتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ بہت انفارمیٹیو ہے، آپ وہاں بچوں کو لے جا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آج کل لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری چیزیں ہمیں بڑے پریکاشنس لینے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بچوں کو خود ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر پریکاشنری سسٹم نہیں ہوتا. تو آج ہم فرسٹ آور میں اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں. اینڈ ان دا سیکنڈ آور ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں، جو خواتین سے متعلق ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت کے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں کیونکہ اس وقت میرا بھی موڈ یہی تھا کہ ہم بات کریں اس ٹاپک کے حوالے سے، اس سبجیکٹ کے حوالے سے. اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید خالد شاہ صاحب موجود ہیں، چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے خیال میں خالد صاحب کے پیر میں چوٹ لگی ہے نا؟ ہاں یہ ریسنٹ ہوا ہے. آپ مجھے پہلے بتاتے ہیں، ہم آپ کو آلریڈی یہاں بٹھا لیتے. اینڈ وی ہیو پلیز تشریف رکھیے راجہ کاشف جنجوا، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. ہیں تو پولیٹیکل اینالسٹ. یہ ویسے آپ لوگ یہ جو یوں کر کے مائک لے کر آتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ وائی از دیٹ سو؟ یہ تو آپ بتائیں. یہ میں یہی تو حیران ہوں کہ میں ایسے مائک لاتی ہوں؟ نہیں لاتی نا، فکس کرتی ہوں. آپ لوگ بھی فکس کیا کریں. بولا تھا میں نے کہ اندر رکھے گا، آواز کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے. اچھا تو پاکٹ میں رکھا کریں. وہ ایسے لگتا ہے مجھے لگا کہ گیسٹ وہ جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یہ کیا چیز ہے جو آ رہی ہوتی ہے پی ٹی وی میں ہاتھ میں رکھ کے، کیا ہے؟ تو آج میں نے ان کو کلیئر کر دیا. خیر خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ. لیکن آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بڑا ہی تشویشناک بھی ہے اور میرے خیال میں غور طلب بھی ہے. اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کریں کیونکہ جو انسیڈنٹ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور ہم نے کچھ فیملیز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. فیملیز اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. ایون وہ بچے جو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھے اور جو عینی شاہد تھے انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا، آنے سے معذرت کر لی بلکہ. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن چینل پہ آئیں اور اس حادثے کے بارے میں بات کریں کیونکہ ابھی تک ہماری آنکھوں کے سامنے وہی مناظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر نوشین کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے شو میں. پتہ نہیں کیوں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور وہ اب تک آئی بھی نہیں ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ وہ آئیں گی تو پیرنٹس کی طرف کی ایک چیز کور ہو جائے گی، بٹ ڈاکٹر نوشین نے پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ تشریف نہیں لا سکی ہیں، اب تک نہیں آئی ہیں. لیٹس سی کہ آگے اگر ہمیں وہ جوائن کرتی ہیں. پہلے تو خالد صاحب اسکول کی طرف کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. اسکول کرٹیسزم کا حقدار ہے یا نہیں؟ تنقید اس کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور تمام کالرز بھی آج اس انسیڈنٹ پہ
جس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. جی خالد صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ دیکھیے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے لے کے گئے تھے نا, اور پیرنٹس اجازت لے کے گئے تھے. حادثہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نا, اور جو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ضروری ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط اسکول اب اس طرح برتتے ہیں کہ اگر کوئی پلان کرتے ہیں تو وہ پرمیشن سلپ دیتے ہیں کہ یہ فل کرا کے آپ پیرنٹس سے لائیں تو پھر ہم لے کے جائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے 1977 میں جب اپنا اسکول اسٹارٹ کیا تو اس کے 1-2 سال کے بعد ہم بچوں کو کیماڑی لے جاتے تھے. کیماڑی سے اسٹیمر میں بٹھا کے منورا لے کے جاتے تھے, سمندر کی سیر کراتے تھے. وہ اتنا انجوائے کرتے تھے پیرنٹس, اور بچے خاص طور پہ اسٹیمر آگے پیچھے جان بوجھ کے کہتا تھا ہم سے, تو ایک اچھا انجوائمنٹ ہوتا تھا. اب ڈر لگتا ہے ایسے کام کرتے. اب ہم کہاں بچوں کو بھیجتے ہیں, اگر ایکسپو میں کوئی چیز ہوئی چلو بھائی وہاں بھیج دو, پھر میوزیم میں وہاں بھیج دو. تو بچوں کے لیے بڑی محدود جگہیں رہ گئی ہے جانے کے لیے. لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات اچھے کرے تاکہ وہ ایکٹیویٹیز سے دوبارہ سے شروع ہو جائے. لیکن اس میں خالد صاحب آپ کی بات سے تو مجھے لگا کہ اسکول انتظامیہ پر ہم برڈن نہیں ڈال سکتے. آپ کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ بنوائی جاتی ہیں پہلے پھر بچوں کو لے کے آتے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈیو کیئر بھی لی ہوگی, سلپ بھروائی جاتی ہے, تو مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سلپ بھروا لیں تو بس پھر وہ بری ذمہ ہوگا, اس کے بعد بچے جانے اور ان کا کام جانے. نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, پھر آپ اپنے الزام دوسرے پہ لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بچے بھی آج کل بڑی بے غیرتی کا شکار ہو گئے. پیرنٹس بھی شکایت کرتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے. اب وہ اسکول لیٹ ہو گئے وہاں پر, لیکن اب ان کے کنٹرول سے یقیناً باہر ہوں گے, بلا رہے ہوں گے بھائی آ جاؤ, مگر وہ کہاں بس سمندر میں پہنچ گئے ہیں, 2 ساتھ ہیں. یہ بھی بڑا فانیہ ہے, بڑی دکھ کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن جن کے وہ بچے تھے ان کی جو سب کیفیت ہے جیسے آپ نے بتائی کہ وہ یہاں کی بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جن لوگوں کے بچے تھے ان تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. اور کاشف صاحب آپ سے کامنٹ لینے سے پہلے کچھ کامنٹس ہم نے ریکارڈ کیے ہیں سی ویو پر ہی, تو وہاں لوگوں کا کیا کہنا ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں, یہ پہلے سنتے ہیں. دوپہر کو تقریباً 1-2 کے لگ بھگ ہم یہاں موجود تھے. ہمیں اطلاع آئی تھی کہ اسکول بچے ڈوب گئے وہاں پہ, تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے وہاں پہ. نکالتے ان کی ڈیتھ ہو گئی. 4 تھے تو 3 ہم نے ان کی باڈیاں نکالی تھی, باقی رہ گئی تھی 1. وہ آج صبح 5:30 بجے ہمیں ملی ہے, تو سر ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. گرمی کے سیزن میں لوگ سیر تفریح کے لیے آتے ہیں. کل بھی کچھ لوگ آئے تھے جو ڈوب گئے ہیں, ان کو منع بھی کیا ہے. اس کے باوجود جو ہے نا یہ لوگ آتے ہیں, اور ہم نے ریسکیو کر کے ان کی ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں. اس کے بعد ہماری پولیس نے ان کی کارروائی کی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سمندر چڑھا ہوتا ہے ان دنوں میں بہت زیادہ, اور منع کرنے کے باوجود جو ہے نا لوگ آتے ہیں. کل کا واقعہ تو بہت بڑا خوفناک واقعہ ہوا. یہ بچے ڈوبے تھے 16-17 سال کے, اور 4 بچے ایک ساتھ گئے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لائف گارڈ نہیں ہے ان کو بچانے کے لیے, نہ مطلب کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. لائف گارڈ تو ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے ولیجر جو کام کر رہے ہیں, شاید کل انہوں نے بچایا ہوگا. جب ہم وہاں پہنچے تو ولیجر پہلے سے وہاں پر موجود تھے, اور ولیجروں نے ڈیڈ باڈیز کو نکالے. تو 1-2 ڈیڈ باڈیز ہم نے بھی نکالے. ہمارے دوست یعنی اسکول کے والے ہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں گھومنے یہاں پر زیادہ تر. تو اسکول والے آتے ہیں تو ان کو احتیاط سے بھی نہانا چاہیے. وہ بچے ہمارے ساتھ کے تھے ڈوب کے مرے, اور ہماری ایج کے لڑکے تھے جو ڈوب کے مرے. اس کے علاوہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں بھی بہت افسوس ہے, کل 4 بچے ڈوب کے مرے, وہ بھی ہمارے بھائی تھے. ہم لوگ بھی ان کی طرح اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہے. ابھی ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, زیادہ پانی میں نہیں جانا چاہیے, احتیاط سے نہانا چاہیے. ہمارے بھی گھر والے منع کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کی نہیں سنتے, آ جاتے. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط سے نہانا چاہیے, زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے, گھر والوں کی بات ماننی چاہیے. کل تو بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے, ایسے پہلے بھی کئی واقعے ہو چکے ہیں نا یہاں پر. ہم لوگ جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں بچانے کے لیے, بھاگ دوڑی کرتے ہیں, پر ہم لوگ کے پاس ہم لوگ کا جو دفتر ہے نا یہاں کوئی ابھی پاور نہیں ہے. پہلے ارجن DRD ملتی تھی, ہم لوگ کام کرتے تھے. ابھی ہم لوگ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے وہاں پر. ایسا ہو کہ ہم لوگ کے دفتر جو ہے نا کوئی محکمہ اٹھا لے, اس کو کوئی سہارا مل جاوے تو یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوئے کنارے پہ ہم لوگ کے. وہاں پہ کل جب میں نے دیکھا
کہ یہاں پہ بندہ کھڑا تھا بھائی جو سیٹیاں اور بجا رہے تھے، انہوں نے کافی اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں. یہاں پہ تو پورا عملہ ہونا چاہیے، نہیں تو اسی طرح جو ہیں واقعات ہوتے رہیں گے. لائف گارڈز کا ایشو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، لوگوں نے کہا، اور ایک اور ایشو کہ بچے کسی کی بات بھی سنتے نہیں ہیں، اور یہی بات خالد صاحب نے بھی کہی، جس سے کافی حد تک ہمیں متفق ہونا پڑے گا اور ایک کاؤنسلنگ سیشن اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور پھر کاشف صاحب سے مجھے بات کرنی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ برکت اللہ بات کر رہا ہوں، آپ جدے سے بات کر رہا ہوں. آواز ذرا آپ کی ہلکی آ رہی ہے میڈم. کوئی بات نہیں، آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ جو آپ انسیڈنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک جو بات کر رہی تھی اس کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں جو بچوں کے جو والدین ہیں ان کو میں ان سے تعریف کرتا ہوں، اور پوری قوم جو ہے ان کے غم میں برابر شریک ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ ذمہ داری جو پڑتی ہے ظاہر ہے وہ والدین کے ساتھ ساتھ اسکول مینجمنٹ اور کالج مینجمنٹ پر بھی پڑتی ہے. آج کل یہ واقعات کچھ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر کوئی 12 بچے جو ہے وہ اس میں سمندر میں وہ سمندر کی لہروں کا شکار ہو گئے. جی تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کو بلیم کرنا یا صرف اسکول انتظامیہ کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار دا کال. جی کاشف صاحب، اس کے اوپر ایک عطا صاحب کا ایک شعر بھی تھا کہ شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے. تو یعنی کیفیت وہ ہے کہ دل کیا ڈوبتا ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک مائنڈ سیٹ ہے، بنیادی طور پہ ان کا قصور نہیں ہے کہ اسکول انتظامیہ کیا دیکھ رہی ہے. یہ صرف بچے نہیں ہیں، میں فگر جو دیکھ رہا تھا 17 کے قریب مجھے نظر آ رہی تھی. یہ اپریل سے، اچھا اپریل سے یہ جون جولائی، یہ ٹائم پورا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سمندر کی لہریں یا سمندر میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اتنا ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اس وقت لوگ قریب نہیں تیرتے، 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ تک نہیں جاتے، اس میں تیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سوئمنگ پول میں بھی تیرنے کی کوشش کریں نا تو اس میں بھی آپ کے بازو شل ہو جاتے ہیں ایک وقت کے بعد. تو وہ تو لہریں ہیں. اچھا لہر کا اصول یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو لپیٹ میں ساتھ لے کے جاتی ہے، پھر پیر اکھڑ جاتے ہیں. تو اس میں بچے، صرف بچے نہیں ہو رہے، بڑے، ہم بچوں کو کہیں کہ بچے لفظ میں بہرا روی تو استعمال نہیں کروں گا، بچے ہوتے ہیں شرارتی. ان کا یہ ہے کہ ان کے اوپر ہمیں نظر البتہ ضرور رکھنی پڑے گی. اور جیسے خاص طور پہ یہ ان دنوں میں مئی سے یا یہ جو اسپیشل ٹائم ہے، بچوں کو تو بالکل بھی کوشش کریں. اسکول انتظامیہ، کسی اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ لے کے نہ جائے ساحل پہ تمام کو. میں خالد صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان سے بالکل گزارش کروں گا، کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، بچے تو ہمارے اسکول میں ہے نا، اسکول کی انڈر ہے، ان کی مرضی ہے وہ جس طرح ہینڈل کریں گے. میں تو ان سے پھر میں تو موجود نہیں ہوں، آپ موجود نہیں ہیں، آپ کے بچے اسکول میں، میرے بچے اسکول میں. تو کہنے کا مقصد کہ بچوں کو ان ٹائم پہ بالکل بھی لے کے نہ جایا جائے. اور خاص طور پہ ان کو چاہیے، اسکول والوں کے حوالے سے کہوں گا، جو محکمہ ہے ایک باقاعدہ اس کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ کب سمندر کی لہریں اٹھیں گی، یہ ان سے باقاعدہ کوآرڈینیٹ کریں، ایسوسیشن کوآرڈینیٹ کر کے. اور یہ 144 ہمیشہ لگا دی جاتی ہے، اس دفعہ ہمیں سنائی نہیں دیا اس بارے میں کہ اب لگ جائے گی، لیکن اپریل سے. اور میرے خیال میں اگر کراچی کے رہائشی ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا پیرنٹس کو پتہ نہیں تھا یا اسکول کو پتہ نہیں تھا کہ پانی کا چڑھاؤ ان منتھ میں زیادہ ہو جاتا ہے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، اگست میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، جولائی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی احتیاط کرتے ہیں. اور جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے پانی تو اور تیز آگے آتا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ہم نے کراچی میں رہنے والوں کے لیے تو بہت عام ہے. سی ویو سے لے کر فرینڈس پیٹ، ہاکس بے، ہم ہر جگہ گئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں بھی نظر میں رکھنی چاہیے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن عرض کر رہا تھا کراچی سے. جی احسن. پہلے تو میں تعریف کرتا ہوں والدین سے جن کے بچے اس
थाने में जहाँ हुए। और दूसरी बात ये कि देखें कराची की बड़ी तफरी बहरहाल समंदर है और इस मौसम में लोग इस तरफ जाते हैं और माजी में ईद उल फितर पे और भी फिर ईद आने वाली है और मानसून आने वाला है, लोग जाते हैं। और एक बात ये भी है, हमने भी तो अपने बचपन में देखा कि जब इंसान इस स्ट्रेसफुल लाइफ से निकल के समंदर के करीब जाता है तो ये खुशी और जज्बे की कैफियत होती है, अपने आप में नहीं रहता। लेकिन ये वालदेन की भारत जिम्मेदारी, जिस तरह हीट वेव के लिए आप लोग प्रोग्राम करते हैं, किसी को मुबारकबाद देता हूँ कि हर मौके पर आपने प्रोग्राम किए। तो जिस तरह हीट वेव के लिए प्रोग्राम करते हैं, एक अलर्ट प्रोग्राम जून से पहले ही मई के महीने में समंदर के हवाले से भी किया जाए। और स्कूल में खालिद साहब तशरीफ रखते हैं, भारत की कानून से जरूर है, लेकिन स्कूलों में ये किया जाए कि स्कूलों में असेंबली में बच्चों को बताया जाए कि भाई अब मई का महीना शुरू होते ही समंदर बिफर जाता है और अभी फार्म हाउस भी जाएंगे बच्चे, छुट्टियां आ रही हैं, तो जहाँ पिकनिक के लिए जाए वालिदैन ज़हन में रखें कि ये जून जुलाई समंदर के लिए, और जहाँ भी पिकनिक जाए बड़ी एहतियातें करें। बच्चों की जिंदगी बड़ी कीमती है, अपने अपने तौर पर जो जिस तरह मेजर ले सकता है जरूर ले। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आया साहब, कैसे हैं? पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि कोई भी स्कूल, मैं कोई इनकी मतलब कोई साइड नहीं ले रहा, कोई भी स्कूल कभी किसी बच्चों को ले जाता है तो वो बहुत केयरफुल रहते हैं। और मेरे ख्याल में कोई नहीं चाहता कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो, लेकिन इंसिडेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ जो साहिल पर जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो बिल्कुल होती नहीं है। और एक तो ये भी होता है कि हमारे रुझान नहीं है। मैंने खुद देखा है कि वो बेचारे रोक रहे होते हैं, लोग सुनते नहीं है, तो अपनी मौत को खुद भी लोग दावत देते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये खालिद भाई बैठन को पता है कि हमारे बहुत जमात इस्लामी के साहब थे, वो बेचारे अपने स्कूल को लेकर गए थे, नसरुल्लाह शब्बी साहब, वो खुद भी बच्चे को बचाते बचाते डूब गए थे। तो ये ऐसा नहीं होता, लोग कोई भी नहीं चाहता कि डूबे। मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि आप जब हमारे इतने बड़े इतना हम पैसा चीजों पर खर्च करते, जाहिर एक तफरीह है जो हम लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो मैं हम जब जाते तो वहाँ हमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि उसके रेस्क्यू के बचाने के लिए कोई बोट्स और कोई चीजें हो। वो लड़कियां लेके बेचारे खड़े रहते हैं, उनके पास ना इक्विपमेंट है ना कुछ है, तो कैसे बताएंगे। जिसका मेरा खालिद भाई से एक सवाल है। खालिद भाई देखिए, बात है कि स्कूल तो हमारे यहाँ बेइंतहा खुलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अब जो स्कूल की रिक्वायरमेंट है, इतनी छोटी छोटी जगह पे स्कूल खुल गए हैं, वहाँ ना असेंबली हो सकती, ना कुछ हो सकता है। तो आप नहीं समझते कि स्कूल की एक जनरल एक स्टैंडर्ड हो स्कूल का खोलने का एक तरीका, हर आदमी का स्कूल हर घर में खोल सकता है, या इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? सही, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। और वसीम साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। सबकी कॉल्स आप लोगों ने याद रखनी है। ज़ाहिर है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या होता है ये तरह से। जी मैं इसमें हेलो जी हम सुन रहे हैं। मैं सजेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट को या स्कूल इंतजामिया को कि ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि समंदर पे कोई भी स्कूल अपने बच्चों को लेकर ना जाए। ये नोटिफिकेशन जब इश्यू हो जाएगा तो ये ज़ाहिर पाबंदी हो जाएगी, वो फिर लेके नहीं जा सकते वो। और बहुत से चीजें हैं, म्यूजियम है और ऐसे एक्सपर्ट, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जाकर के बच्चों की नॉलेज बढ़ सकती है। और मैं कभी भी अपने बच्चों को स्कूल में कभी भेजा ही नहीं मैंने कि वो बच्चे इस समुद्र पे जाएं। हमेशा अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे का हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सजेशन है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छी सजेशन है, थैंक यू सो मच। लेकिन होता यही है कि बच्चे जिस एज के अभी गए हैं वो तो माँ बाप से जिद करके भी जाते हैं कि हमारे स्कूल का लास्ट ईयर है, हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, हमें जाना है, तो माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। वरना यही बात है कि दिल किसी माँ बाप का नहीं चाहता कि आप फील्ड ट्रिप पे या इस तरह की पिकनिक्स पे भेजें बच्चों को। हमारे साथ मिसेस सूफी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत बेटा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हमने भी खबरों में पढ़ा कि पिछले 10 रोज में तकरीबन 17 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इसमें हम्बली आई वुड लाइक टू शेयर के इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट स्कूल इज टोटली टू बी ब्लेम्ड, नोइंग द फैक्टर्स कि आपको पता है कि आप 16-17 साल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, नोइंग द फैक्टर कि हमारे पास कोस्ट गार्ड नहीं होते हैं, नोइंग द फैक्टर अभी एक आपके प्राइवेट स्कूल के जो साहब आए हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी बच्चे आजकल के बात नहीं मानते हैं। और अगर आई एम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और आई एम द टीचर देन आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एम आई केटरिंग। तो इस किस्म का रिस्क लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद बेटा पूरी जो हमारी कौम का रवैया है, मिनहसुल कौम, एंटायर सोसाइटी इज टू बी ब्लेम्ड एज दैट। आप देखो मीडिया में ऐसे बीवरेजेस के इश्तिहार आते हैं कि अगर आप ये बीवरेज ना पिया तो कुछ ना किया, और वो बीवरेज पीने के बाद ऐसे ऐसे
स्टंट्स दिखाए जाते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मुल्क और कौम का सरमाया होता है, उनकी तरबियत करना हमारा फर्ज होता है। कहते हैं ना, अगर आप उनको टाइम पे नहीं काटेंगे, छाटेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे। और फिर आप देखें, आए दिन रोड पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रिक्शा लेके बच्चों को स्कूलों में जा रहे होते हैं, कभी ट्रेन का हादसा हो जाता है, कभी कोई ट्रेलर चढ़ जाता है। तो होल सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब तक हम अपने रवैयों में जिम्मेदारी नहीं लाएंगे, तब्दीली नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनपुट। और मजीद लोग भी कॉल पे बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम जवाबात लें राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तूफानी बारिश में निकासी आब मुयसर न होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सीवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलग किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सबकी मंजिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तूफानी बारिश में निकासी आब मुयसर न होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सीवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों के लोग पानी की सतह की मुस्तकिल निगरानी करें और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए रेडियो सुने। रात के वक्त अलार्म, लाउड स्पीकर या मोबाइल फोन के जरिए लोगों को सैलाब की इत्तला दें। सैलाब ज़दगान से गुजारिश है कि वो अपने इलाके के मुतलका जिले इंतजामिया के जरिए रिलीफ कैंप का रुख करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सबकी मंजिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब रहिए बाखबर, ताज़ा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ पीटीवी के मुसद्दिक़ा ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़ेह कर देगा। काबिल एतबार ज़राए वेलकम बैक। और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पिछले दिनों हुआ जिसमें बच्चे डूब गए, हम स्कूल इंसिडेंट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि अगर 10 दिन में देखा जाए तो तकरीबन 17 लोग, जैसे कि हमारे कॉलर्स ने भी बताया, न्यूज़ में भी चल रहा है, अपनी जान से जा चुके हैं। हर साल का यही रूटीन है, इस रूटीन में कोई तब्दीली नहीं हुई। सीव्यू से लेकर सैंडस्पिट तक, हॉक्स बे तक एंड अदर प्लेसेस जहाँ पर सी साइड है, लोग अपने आप को सी साइड के सामने पाकर अपने काबू से बाहर हो जाते हैं और इस कदर समंदर से मोहब्बत जताते हैं कि फिर समंदर उनको अपने साथ ही ले जाता है। और इसी बात को आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, खुसूसी तौर पे बच्चों की बात को। मिसेस सूफी ने भी कहा, बहुत लोगों ने, कुछ ने कहा, याहिया साहब ने जैसे कहा कि स्कूल इंतजामिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक साहब वसीम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को भेजता ही नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज का फुकदान है, हर फैसिलिटी का फुकदान है। तीसरी मिसेस सूफी ने कहा कि स्कूल वाले ही जिम्मेदार हैं। हमें बात ये है कि हम ऐसे हादसे पे बात कर रहे हैं कि जरा खुल के बात करने में थोड़ा सा दिक्कत पेश आ रही है। कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा जुमला ना हो जाए जिससे उनकी दिल आज़ादी हो। तो खुल के बात करें, जुमला ऐसा ना कहें। नहीं, मतलब हो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल पे लगाई गई और उसमें एक डिमोनाइजेशन की गई मरियम नवाज साहिबा की। उनको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई हर अंदाज से कि जैसे कि वो बहुत बुरा कोई किरदार अदा करती रही है या उनके जो बयानात हैं उनमें तजाद है। उसके ऊपर जब तोड़ मरोड़ के
17 बरस के दौरान जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज आए, हसन नवाज का BBC की तरफ से, उसके बाद हुसैन नवाज का, उसके बाद मरियम नवाज का जो इलेक्शन से पहले था 2013 में, उनमें से हिस्से तोड़ मरोड़ के ये साबित करने की कोशिश की गई कि बयानों में तजाद है। उसके ऊपर भी अच्छी लानत पड़ी जब हमने उसका PID में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साबित किया कि सिर्फ बयानों में तजाद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तमाम बयान जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और किसी को नहीं पता था उस वक्त जो 1999 में हसन नवाज साहब ने इंटरव्यू दिया कि कोई पैनामा बननी है या कोई हिस्सा के पेपर सामने आने हैं, तो उस वक्त भी उनका मौक़िफ़ वही था। उसके बाद मरियम नवाज का भी मौक़िफ़ वही था जब उनकी माँ की, उनकी बहन की और हमजा शहबाज की और CM साहब की जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जब ये एक नाम नहाद लीडर जो है पंजाब के PTI के, वो एक कागज ऐसे लेकिन प्रोग्राम में दिखा रहे थे, उनके ऊपर रिएक्ट किया गया था। और ये वाज़ह तौर पर हमने उस वक्त भी बताया, लेकिन उसको एक पतंगड़ बनाने के लिए, एक मीडिया ट्रायल बनाने के लिए, एक नीचा दिखाने के लिए, एक उनकी तस्वीर करने के लिए एक कैंपेन जारी और सारी रही। यहाँ तक इनको शर्म नहीं आई जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि क्या अगर ये साबित हुआ कि आपकी बात गलत है तो आप हाथ बांध के माफी मांगोगे। जब और ये तस्वीर जारी रही और हम बताते रहे, उसके बाद जब और कोई तरीका नहीं निकला तो फिर अदालत में आके ज़ेरे कफालत की बात जो है वो छेड़ दी गई कि जी चूंकि ये ज़ेरे कफालत है लिहाजा ये सारा का सारा जो है ना मलबा मरियम नवाज के ऊपर और उनके जरिए से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आता है। कितना बातें हमने सुनी। जब अदालत में बात आई तो यही जो एक स्टेपनी वकील और एक ये दूसरे जो हामिद खान थे, वो तो तुम दबा के पहले दिन ही भाग गया और उसके बाद स्टेपनी को भी मानना पड़ा कि जी बाकी ये बात। तो दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि हुकूमत को पहले दिन से ही काम नहीं करने दिया गया और उन्होंने कहा कि पैनामा केस में मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है, जबकि हुसैन नवाज और मरियम नवाज के माजी के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। VTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई इनका साथ देना है। असल प्रॉब्लम जो है वो उन छोटे स्कूलों के है जहाँ पे पेरेंट्स भी बड़े मैं आपको क्या बताऊँ हाइपर होते हैं। बड़े स्कूलों के भी पेरेंट्स को आपने देखा है कोर्ट तक चले गए, अभी तक केस चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं उसको भुगत रहा हूँ, मैं उसी को भुगत रहा हूँ। हाँ वो तो और मसाइल है, फीस का मसाइल है, लेकिन उठाई ना। लेकिन ये क्या वो परेशान है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि जिन स्कूलों के खिलाफ उन्होंने किया मैं उनकी नुमाइंदगी भारत करता हूँ और करूँगा, इसलिए कि वो एक क्वालिटी मीट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आप उनकी फीस को देखें, उसको डॉलर में कन्वर्ट करें, डॉलर में कन्वर्ट करने का इस पे मैं बहुत बहस कर सकती हूँ क्योंकि जितनी वो फीस ले रहे हैं, चलें 20,000 फीस ले रहे हैं एवरेज बड़े स्कूल के एवरेज सिस्टम में 20,000 रुपए होते हैं, जितने भी डॉलर होते हैं वो 20,000 ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब उन्हें अपनी बिजली, एक तो AC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब गर्मी होती है तो वो लंच ब्रेक में बच्चों के पंखे भी बंद कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको बिजली बचानी होती है। सिर्फ मैडम के रूम में और एक और रूम में AC चल रहा होता है। ऐसी नहीं, आई नो, मैं भी आई एम अ पेरेंट, आई हैव पेरेंट फ्रेंड्स, आई नो, ये बात नहीं है। ऑल्दो वी पे बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुरखरू होके उतर गए। हमने भी O लेवल्स किया था, अब बच्चे ज्यादा O लेवल्स कर रहे हैं, हमारे जमाने में कम लोगों ने किया था, लेकिन ये बात नहीं है। अब अच्छी क्वालिटी का मकसद ये नहीं है कि आप पेरेंट्स को, स्कूल में शायद ऐसा होता हो दायरे कि ना 100% ऐसे हैं और ना 100% वैसे, लेकिन ये हम इस पे रखेंगे और टीचर्स को और उनको सबको बुलाएंगे। इजहार साहब की कॉल है, उसके बाद काशिफ साहब आपसे कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अभी जो ये खालिद साहब बैठे हुए हैं, इनकी जितनी भी गुफ्तगू अब तक हमने सुनी उसे कहीं से भी नहीं लगता कि इनको कोई इनकी अमवात के ऊपर सदमा हुआ, बल्कि ये डिफाइन कर रहे हैं अपने स्कूल को, स्कूल इंतजामिया को। देखें आप ये दिखाइए कि ये अकल और शऊर की बात है कि ये लोग टीचर हैं, ये सबसे ज्यादा जो है वाक़ियत रखते हैं कि मौसम कैसा है, किस मौसम पे कहाँ लेके जाना है। ये किसकी प्लानिंग थी कि इस महीने में जो है बच्चों को ले जाया जाए। एक बात, दूसरी बात क्या इन लोगों का कोई ऐसा सिस्टम है कि ये किसी अपने बड़े को इतला करके जाए कि हमारा स्कूल आज वहाँ जा रहा है और हमें इतनी लाइट जैकेट से चाहिए।
आप ये देखें कि एक जो इतने हादसा होने के बावजूद क्या स्कूल के बच्चों को लाइफ जैकेट पहना के अगर 50 बच्चे तो 50 लाइफ जैकेटें खरीद करके स्कूल नहीं दे सकते, जो आपसे हजारों रुपए की फीस वसूल करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इतने आराम से ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टॉपिक आपको वो है कि बच्चे क्यों मरे, आप उसको बता रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट का काम है, ये वो नजर नहीं आ रही है। आप ये बताएं कि ये जो बच्चे एक है भी इनको अगर कंपनसेशन देना पड़ जाए इन 4 बच्चों के वालिदैन को, आप देखिए कि आइंदा ये सीवीयू पे ले जाना ये भूल जाएंगे कि हम किसी बच्चे को लेकर के जाएं। जिम्मेदारी इनकी, अगर बच्चा इनके काबू में नहीं है तो फिर ये उस बच्चे को लेके नहीं जाते। जितने बच्चे इस काबू में, सब टीचरों को पता होता है कि ये बच्चा कितना शरारती है, ये काबू में है या नहीं है, आप उसको छोड़ करके जा सकते थे। आप अगर लेके गए, एक बच्चा नहीं गया, 4 बच्चे गए, इसका मतलब था कि आपके जितने भी लोग इस वक्त इस इंतजामिया के जो थे वो साहिल समंदर में खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे कि ये बच्चे डूब रहे हैं और हम जो है यहाँ पे खड़े होकर के, तो आप लेके क्यों गए? आपके एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इनका स्कूल नहीं था, इनको तो हमने स्कूल इंतजामिया की सरबराही, क्योंकि ये करते हैं जितने भी स्कूल हैं एसोसिएशन की सरबराही ये करते हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर मदऊ किया है। लेकिन हाँ ठीक है, इनकी बात से आपको लगा कि ये उनको फेवर कर रहे हैं तो इस पे इनका पॉइंट जरूर ले लेंगे। लेकिन काशिफ साहब आपसे कहा ना कि बड़ा इस वक्त नहीं जाना चाहिए था, उनको सिचुएशन देखनी चाहिए थी, तो गलती हुई है इस हद तक। पेरेंट्स ने भी गलती की है, अलाउ किया जाने के लिए परमिशन दी, और स्कूल इंतजामिया की भी गलती है कि ऐसे मौके पर बच्चों को वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा, मुझे जो सबसे पहले जो इतने कॉलर्स में सबसे बेहतर जो मुझे लगता है वो मिसेस सूफी ने जो बात की है, मैं उसके हवाले से जरूर बात करूंगा। उन्होंने कहा जो रवैये बदले जाए, मैंने बिल्कुल इब्तिदा में आपसे कहा कि ये माइंडसेट का है, ये एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है कि वो सोसाइटी किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। आप एक सिग्नल पे खड़ी हो, आप कभी देखें ट्रैफिक, हम सभी ट्रैफिक से होते हुए जाते हैं आते हैं सड़कों से, आप देखें एक सिग्नल बंद होता है, ख्वाह मोटरसाइकिल वाला हो बड़ी गाड़ी वाला वो सब तोड़ते हुए सिग्नल जा रहे होंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो कौम जिसके अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर जहां लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, वो उसको आप कैसे शऊर देने जाए। ये ट्रेनिंग इनका कसूर नहीं है खालिद साहब का, ये तो एसोसिएशन के नुमाइंदे, स्कूल्स वालों का भी कसूर नहीं है कि कैसे करें। ये एक पूरी कैंपेन है जिसको चलाने की जरूरत है, ख्वाह वो सरकारी सतह पे हो या निजी एनजीओ की सतह पे हो, कि लोगों में शऊर डेवलप करें। सिर्फ साहिल की बात नहीं, साहिल का तो ये शऊर कौन डेवलप करेगा? स्कूल वालों का भी कसूर नहीं है, खालिद साहब का भी कसूर नहीं है, सारा कसूर माँ बाप का और बच्चों का, कि उनमें शऊर नहीं है। सर देखें, माँ बाप या बच्चों की हद तक नहीं, मैं इसको इन टोटल मैंने कहा कि एक सोसाइटी को एक अवेयरनेस दी जाए कि देखें ये डेवलप किया जाए, इन तक भी वो चीजें इनको उस प्रोग्राम में। आपने भी इस उम्र में ये किया होगा? किया? नहीं सही कह रहे नहीं। आप सीबीयू गए थे, सी साइड गए होंगे 17 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, आपने नहीं सुनी होगी अम्मा अब्बा की। आज भी अगर बेगम आवाज देती होंगी सुनते हैं आप सी साइड पे जाके? सच बता दें। नहीं देखें, एक लिमिट तो रखता हूँ, मतलब मेरे साथ भी तो एक हद तक रहता है। वो स्विमिंग पूल में बेगम की आवाज देती रहती है, सुने सुने, नाम लेते हुए भी अक्सर को तो वो परेशानी हो रही होती ना, वो सुने उन तक पहुंच ही नहीं रही होती, सुने तो आगे जा रहे होते हैं, और छोटा सा बच्चा भी कानने पे रखा होता है। हाँ, तो बात ये है कि वो बात आपकी मैं अग्री करती हूँ कि जैसे मिसेस सूफी ने भी कहा कि मिनहासुल कौम हमारा रवैया ये है कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इस इंसिडेंट में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रवैये की वजह से ऐसा हुआ। रवैया वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स। मैं टोटल सबके रवैये का, और दूसरा हुकूमत की जानिब से, जैसे अभी आपने लोगों के व्यूज भी दिखाए कि वहाँ पे सारे इंतजामात होने चाहिए, और जैसे ही अप्रैल का महीना, उनको पता है कि टाइम आ रहा है कि अब समंदर की लहरें बहुत तेज हो जाएंगी, वहाँ पे बाकायदा साइन बोर्ड होनी चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, पता हो लोगों को, जैसे ही साहिल पे उतरे एक साइन बोर्ड की सूरत में कैफियत हो, लोग मौजूद हो, पॉपुलेट, मैं तो कहता हूँ लाइफ गार्ड्स। अच्छा, लाइफ गार्ड वो तो चलें, एक लिमिट में होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, लेकिन बहरहाल उनको होना चाहिए। उसके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम उसी साहिल पे ही किया जाएगा। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, इन कॉलर के बाद आप जवाब दीजिएगा कि हम जब हुकूमत को ब्लेम करते हैं, और यहाँ सिंध हुकूमत को बहुत ब्लेम किया जा रहा है इस बात पे, वो 144 का तस्करा हो या कुछ भी हो, इस इंसिडेंट से आप हुकूमत को कैसे रिलेट करके उनकी क्या जिम्मेदारी है, जरा वाजे करिएगा इस कॉलर के बाद, क्योंकि कहाँ जिम्मेदारी है जो वो चूक गए। अब तो ये इंसिडेंट हो गया। हमारे साथ क्वेटा से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो ये बड़ा सामया हो गया, बड़ा दुख हो गया, पूरी कौम को भी अफसोस है, हमारे बलुस्तान के भी लोगों को अफसोस है।
उस दिन इत्तेफाक से मैं खुद भी सीवीओ में था और मुझे बड़ा अफसोस हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट का लाइव करंट बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, सिर्फ एक पुलिस वाला बेचारा सीटी बजा रहा है, कोई इसकी बात को सुन ही नहीं रहा है, हर बच्चे आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं सीटे साहब से ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसका अपना बेटा उस दिन उधर होता तो वो क्या करता? दिस इज क्वेश्चन, इसका मुझे जवाब दे। वो तमाम स्टूडेंट्स को ले गए, स्टूडेंट तो वैसे भी अनमेच्योर होते हैं इस क्लास में, 12 साल 13 साल 14 साल, उन बच्चों के लिए तो कम से कम उसको पता है, मौसम वार्निंग है कि समंदर जो फीस पे है इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो उनको ले गए। एक तो गिल्टी हमारे ये टीचर्स हैं, दूसरी गवर्नमेंट की भी वो है, ना कि प्लानिंग है। दुनिया में कहीं भी आप जाएं ऐसे सीवीज होते हैं, वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं रबड़ के, स्टाफ होता है, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको तो वो नहीं है कि सब वो तो एंजॉय करते आगे आगे चले जाते हैं। लिहाजा मेरा यही क्वेश्चन है कि टीचर्स की जिम्मेदारी होती है और दूसरा हमारे गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। इतनी खूबसूरत हमारा मुल्क है, यहाँ पे कहीं भी आप जाए ऐसे जगह है, वहाँ पे कोई लाइव पेरेंट्स का कोई ऐसा। एक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है। हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको, नाम नहीं बताया आपने अपना। कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अच्छा मतलब ये जो इसमें एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा अपने तमाम व्यूअर्स को। जरूर जरूर। जितने भी लोग समंदर पे जाते हैं तो समंदर का हमारे यहाँ का ट्रेंड ऐसा है कि यहाँ पे 2 दफा जो है वो पानी चढ़ता है, जिसको हाई टाइड कहते हैं, और 2 दफा जो है वो पानी नीचे की तरफ जाता है। तो जो भी बंदा समंदर पे जा रहा हो या जो भी स्कूल प्लान कर रहा हो समंदर पे पिकनिक का, तो उनको उस टाइम में प्लान करना चाहिए जिस वक्त पानी चढ़ रहा हो, क्योंकि जिससे पानी नीचे जा रहा होता है कोई भी अगर समंदर में जाएगा तो पानी की टेंडेंसी है कि वो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का अगर हम लोग ख्याल रखें तो थोड़ा बहुत हम इससे बच सकते हैं, इसके संग के सामने आते हैं। लेकिन ऐसी कोई डायरेक्शंस का कैसे ख्याल रखें? किसी को फोन करें, अखबार में ढूंढें या ये टाइम आ रहा होता है, हाई टाइड और लो टाइड का जो टाइमिंग है ये अखबार में आ रहे होते हैं। आ रही होती है, क्या लिखा होता है उर्दू अखबार में? क्या लिखा होता है? हाई टाइड को क्या कहते हैं? हाई टाइड ही कहते हैं। हाई टाइड ही कहते हैं उर्दू अखबार में, हाई टाइड और लो टाइड लिखा होता है। इंग्लिश अखबार में तो मैंने देखा है, उर्दू का मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसमें कुछ आता या नहीं आता, लेकिन इंग्लिश अखबार में तो ये जनरली आ रहा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपसे एक सवाल किया था खालिद साहब, फिर आई नो आपको जी बहुत सारे लोगों की क्रिटिसिज्म का सामना आपको है। वैसे आप ही को होता है चेयरमैन बनने की, यही इफेक्ट्स हैं। आप बीइंग चेयरमैन आपको जवाबदेह होना पड़ रहा है। अच्छा, ये जैसे कॉलर ने अभी कहा कि वहाँ उस वक्त कोई मौजूद ही नहीं था, ना बचाने वाला, ना वो एक पुलिस वाला जो सीटियाँ बजा रहा है कि भाई हट जाओ, उसकी कौन सुनेगा। तो ये बाकी सिंध गवर्नमेंट की कम से कम देखना चाहिए इस साल उनको और अगले सालों के लिए भी कि इसकी एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं और वहाँ लाइव गार्ड्स जो मौजूद हैं वो उनको मौजूदगी उनकी मुमकिन बनाएं। उसके अलावा ये कि आप 144 भी लगा देंगे कि जी साहिल समंदर पे जाना ही बंद कर दें, वो भी एक टेक्निकली गलत हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी लोगों को थोड़ा फासला रखना चाहिए और ये इसको यकीनी बनाना बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपकी सिटी गवर्नमेंट आ जाएगी, आपका कंटोनमेंट बोर्ड आ जाएगा अगर उनके एरिया में आ रहा है। बहुत सी जगह कंटोनमेंट के एरिया में आती हैं और ये साहिली पट्टी तो आपको पता है गवादर ये आगे तक जाती है। ये पूरे के पूरे जहां जिस चीज की हदूद में आता है और जहां लोग आते हैं पिकनिक के लिए वहां सब जगहों पे ये चीज जरूरी है और फौरी तौर पे इसका निफाज कर देना चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पे। अच्छा, लेकिन इसमें याद होगा आपको पिछले साल भी बहुत लोग सीव्यू पे डूबे थे। ये सैंडस्पिट की बात हो रही है, सीव्यू पे बहुत लोग डूबे थे। ईद के सीजन था शायद, बाहर से भी लोग आए हुए थे इधर उधर से और इतने लोग डूब गए थे कि बाद में जब उस पर प्रोग्राम्स हुए थे तो ये पता चला था कि वो जो एक तरीका होता है ना कि शलवार को बांध के हवा भर के उस तरह भी लोगों ने जंप लगाए थे पानी में। तो क्यों करते हैं आप लोग ये सब? इतनी दफा टीवी पे बात की जा रही होती है फिर भी आप लोग ये तमाम चीजें करते हैं, मुझे तो हैरत होती है। और उस पे मेरी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी क्योंकि वो तैनात थी उस वक्त सीव्यू पे और उन्होंने कहा था कि मैंने डंडे मार मार के लोगों को बाहर निकाला और वो कहते थे कि आप लोग कैसे लोग हैं, हमें एंजॉय भी नहीं करने देते, हम कहाँ जाएं। और मतलब फिर उसमें भी हुकूमत और पुलिस इदारों को क्रिटिसिज्म करते थे। इस बात को हम आगे बढ़ाते इस ब्रेक के बाद। बहुत खुशी है जी मेरी तरफ से नौजवानों को
बच्चों को, खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने सबको यहाँ पे बुलाया और हमें इतनी इज्जत दी। बहुत मज़ा आया आई थिंक पूरा टूर्नामेंट खेलने का, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में खेल रहे थे। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम को लीड की। पहला मैच हारे, उसके बाद हुआ क्या? इट्स नॉट इजी टू कम बैक द वे पाकिस्तान टीम प्लेड। हाथ देखा था मैंने, फिर मैंने शादाब को बोला काश मैं भी आउट हो जाऊँ इस तरह। मतलब आउट होने का ख्वाब देखा। मेरे लिए जितनी भी विकेट थी वो सारी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान को विकेट चाहिए थी, पाकिस्तान टीम को विकेट चाहिए थी, तो मेरे जितनी भी विकेट थी सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। आप हमारा साथ ना देते तो वो दिन ना आता और शायद आज का दिन भी ना आता। फेक हैं। वेलकम बैक। फेक अकाउंट्स हैं, हम फेक अकाउंट्स की बात कर रहे थे फेसबुक के, तो वो वैसे आप सर्च करने की कोशिश ना करिएगा। खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जो हम बात कर रहे थे और जो लोगों ने आपसे बात की, थोड़ा सा अनफेयर भी हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि खालिद साहब सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका स्कूल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के जज्बात हैं। ऑब्वियसली जब आप खुद माँ बाप में से कोई होते हैं तो आपको दूसरे माँ बाप की तकलीफ अपनी सी ही लगती है, या दूसरे बच्चों की तकलीफ अपने बच्चों जैसी लगती है। तो क्या कहेंगे कॉलर की बात? मैं भी हूँ, मुझे भी अफसोस है इसका बहुत ज्यादा जी। और मैं सबसे पहले तो मैसेज, जब क्योंकि वैसे भी छुट्टियाँ हुई हैं समर वेकेशन की, लेकिन मैं तमाम स्कूलों को ये तंबीह कर रहा हूँ कि आप इस ऐसे सीजन में अपने बच्चों को कभी भी स्कूल के बच्चों को ऐसे सीजन में नहीं लेके जाएं। और खालिद साहब, आपने तो हुकूमत सिंध के साथ मिलकर और दीगर इदारों के साथ मिलकर हमेशा बड़ी रेगुलेशंस पास कराई हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज वन थिंग जिस पे आपकी तवज्जो अब हमें जरूरत है इसकी। नहीं, इंशाल्लाह इसकी अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम करेंगे, हम बच्चों को देंगे अवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस मामला है। एक तो ये होता है कि भाई कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर चली, इसमें एहतियाती तदाबीर कोई नहीं हो सकती। जब बच्चा समंदर में चला गया, कोई भी चला गया और बहुत आगे चला गया, तो उसके बाद फिर अल्लाह ही उसको बचाने वाला है। तो लेकिन ये अवेयरनेस देनी है कि आप वहाँ जाके बिल्कुल एकदम वैसे उसमें मूड में ना आ जाए कि आप सुसाइड की तरफ चले जाए। तो उनको ये बताया जाएगा कि अगर आपका जो ये एक्शन होता है ना वहाँ जाके, ये सुसाइड के बता रहा है, तो इसलिए आप ऐसा ना करें। बात असल में यही है कि हम इस वक्त इतने उलझे हुए हैं, एसोसिएशन हमारी, हम बहुत से प्रोग्राम हमारे पास पाइपलाइन में हैं, लेकिन क्या होता है इमरजेंसीज आ जाती हैं। क्या वो पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, अब वो कोर्ट में चले गए, फिर हम कोर्ट पे जनाब जा रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस्लामाबाद, फिर वहाँ से फिर हाई कोर्ट में केस वापस आ गया। हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं। तो मैं पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको किसी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा लग रही है तो किसी की तरफ से कोई आपको पाबंद नहीं किया गया है कि इसी पर्टिकुलर स्कूल में आप एडमिशन कराएं। तो ऑप्शन है आपके पास, उसको आप अपनी लेकिन वो ये नहीं कह रही फीस है, वो कह रही है फीस है, सहूलियात भी दें जितनी ले रहे हैं। और एक और मेरा पॉइंट ये, इस पे तो हम दोनों मेरे ख्याल में सेम पेज पर थे जब हमने एक दफा पहले भी इसका जिक्र किया था कि अगर 7,000 मेरे बच्चे की फी है जब वो स्कूल में एडमिट हुआ, तो हर साल मुझे पता हो कि 10% बढ़ेगी, 5% बढ़ेगी, 7% बढ़ेगी। आप वो एडमिशन पॉलिसी में लिख देना। लेकिन आप जब हर साल 15%, 20%, 18%, 12% जो आपका दिल चाहेगा वो करेंगे, तो मतलब मेरे यहाँ तो दरख्तों पे पैसे नहीं उगते ना। जो चीज गलत है वो गलत है। इसके लिए हमने मीटिंग्स की थी और हर कैटेगरी के यानी वो फीस वाइज हमने, और उसमें मिनिस्टर एजुकेशन भी थे प्रीवियस जो हमारे थे, वहाँ हमने बैठ के इसको डिस्कस किया था। मैंने कहा जो चीज़ गलत है वो गलत है। पेरेंट्स को वाकईतन पता होना चाहिए कि आज हम दाखिल करा रहे हैं, कल अगले साल क्या होगा। तो उसके लिए हमने 10% को रिकमेंड किया था कि 10% कर दें। फिर वहाँ जब बात चली कि 10% से भी कुछ स्कूलों की फीस इतनी हाई है कि 10% से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ मेरी ही तजवीज़ थी कि 2,500 के बाद अगर उससे ज्यादा 10% जा रही है, कैप लगा दें कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं बनते,
کوئی نوٹیفिकेशन जारी नहीं किया, इम्प्लीमेंट कैसे होगा जब आपको एक मीटिंग, आपने 3 मीटिंग्स बुलाई, 4-5 घंटे की मीटिंग थी. मुझे तो याद है खालिद साहब, हम तो उस दौर में भी परेशान थे जब आप लोग की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो जाती थी कि कल स्कूल बंद है और स्कूल इंतजामिया कहती थी हमारी वेबसाइट पे देखें स्कूल बंद है या नहीं. तो जब हम बहुत खराब वक्त था वो हमारे लिए तो कम से कम, क्योंकि हमें ये देखना होता था. मैं उस वक्त इस में लगा हुआ होता था कि तमाम टाउन कोऑर्डिनेटर से आपके में होता था, आपके टाउन की क्या पोजीशन है. उधर से मुझे मीडिया कह रहा था शायद बस जल्दी से न्यूज ब्रेक करने के लिए. सॉरी, वो यूके से कॉलर है, मुझे बार बार बताया जा रहा है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मैं हज़रत सैयद मानसर से बात कर रहा हूँ. जी जी. मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और आपके मेहमानों की. देखिए, हमारे यहाँ का जो एक ओवरऑल पिक्चर आती है, इसलिए आती है कि जब तक पानी हमारे सर से गुजरता नहीं है ना, हमारी यहाँ की खुलती नहीं है, और उसके बावजूद भी नहीं खुलती अगर पानी सर से भी गुजर जाए. ये हमारे पूरे मुल्क का एक रवैया है. ये शऊर की जो आप बातें कर रही हैं ना, ये शऊर जो है हर लेवल पर उजागर किया जाता है. हमारे यहाँ यूके में क्योंकि कानून का इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ट्रैफिक लाइट पर अगर कोई तोड़ के निकलता भी जाएगा तो वो बच के नहीं जा सकते, क्योंकि वो कैमरा उसको ब्लॉक कर देता है और उसको फाइन हो जाता है, वो बच के जा नहीं सकता. हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो किसी भी लेवल के हों, हुकूमत के हों, इंफरादी तौर पर हों, सब कुछ हो, उनको ये इस बात का एहसास है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं. अगर हम किसी को जिम्मेदारी का कोई मंसब देते भी हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट करप्शन कहा जाता है. आपके पीछे से हमेशा जो जिम्मेदार वो हैं आपके डिपार्टमेंट, उनका ये काम है कि वो आपके लोगों को रोकें. इसी तरह आपके ट्रस्ट का निज़ाम है. मुझे खुद कराची में इस बात का तजर्बा हुआ है और बड़े शहरों में भी, कि जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ के ट्रैफिक के निज़ाम वाले कहते हैं साहब हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे कोई सुनता नहीं हमारी बात को, कुछ नहीं करती. सारी चीजें लॉ इन्फोर्समेंट की हैं, इंफरादी तौर पर जिम्मेदारियों की है जो हमारे शहरियों की है. टेलीविजन से आप इश्तिहारात दिलाइए, लोगों में वो शूर पैदा करें, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी की मशीनरी उस काम को सही तरह अंजाम नहीं देगी, आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, इसी बात का सबसे बड़ा अफसोस है. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपकी बातें सारी बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन यूरोप की हिस्ट्री हमसे बहुत पुरानी है, उनके रेनेसांस की हिस्ट्री हमसे बहुत पुरानी है. उनको सेंचुरीज गुजर गई, हमें 1 सेंचुरी भी अभी नहीं हुई है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को ना सुधारें या अपने आप में बेहतरी पैदा ना करें. हमारे साथ एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसी है? ठीक ठाक. मैं ठीक हूँ मेरी दोस्त. हाँ जी, क्या कहना चाहती? चाची के आने से बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है. अफसोसनाक वाक़या हुआ है. बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है. आप सब उन फैमिलीज को दुआओं में याद रखें. हमें इस कड़वे पानी में जाने की जरूरत ही नहीं है. हमारी एक गलती से हमारी जान भी जा सकती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप. थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया. और ये बात है कि हम जितना भी खालिद साहब को जो भी कहें, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है एज पेरेंट, एज ग्रोन अप्स, अपने बच्चों के सामने भी है, खुद भी है. हमारे अपने रवैये भी ऐसे हैं कि वो उसको फॉलो जब बच्चे देखते हैं करते हुए तो फिर वो भी उसी तरह ही फॉलो करते हैं. एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मैं मिसेस नईम बात कर रही हूँ. जी मिसेस नईम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. और ये मेरी फर्स्ट कॉल है और मैं आपको बहुत देखती हूँ और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ. और आज आपने जिन इनको बुलाया है शाह सर को, उनसे मेरे बहन भाइयों ने भी पढ़ा है ब्रिलियंट करियर में और माशाल्लाह काफी आजकल किसी न्यूज में भी है मेरी बहनें. लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात में कुछ बात ऐसी करनी है कि कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हैं. अच्छा. एक होता है फीस. हाँ. सेकंड होता है चाइल्ड हैरेसमेंट. और थर्ड होता है जो टेक्निक का आपका चल रहा है. जी. तो फीस में तो ये कि अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं 30+, एक को जो है आपको हाफ देना चाहिए. सेकंड है आपका, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सेंडिंग ग्रामर स्कूल माशाल्लाह बाबा स्कूल है. और लेकिन वहाँ जो बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है. लेकिन बच्चों को हाथ उठाने का मसला, अब्यूजेस बच्चे आजकल बहुत ज्यादा दे रहे हैं.
क्योंकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको घर में माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है या वहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं और वही स्कूल में आके स्टार्ट होता है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट में बहुत कम जो इस तरह से होता है कि उनका एक्शन लिया जाता है या नोटिस किया जाता है। अगर 15 साल से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चे टॉप करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इस साल भी कॉन्टेस्ट में वो लोग टॉप कर चुके हैं, लेकिन हम जो टॉप लेवल से आ रहे हैं हमें ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे हम स्टेडिया की मदर्स हैं। तो ये चीज जो है वो स्कूल मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आप तो उसकी गैदरिंग देखें, आप उसका माहौल देखें, आप ऐसे ऐसे बच्चों को एडमिशन दे रहे होते हैं जो इतने गाली गलौज वाले होते हैं, जो साथ में कोई नाइफ लेके आता है तो कुछ लेके आ रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती है ड्यूरिंग द एग्जाम। चीटिंग का रुझान बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं ऑन एयर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अगर कंक्लूड कर दें। बात ये असल में बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और उनको बाअदब बनाना। मैं आजकल फंक्शन में जा रहा हूँ एनुअल रिजल्ट में, तो मैं एक ही बात पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को सिर्फ बाअदब बना दीजिए। जब वो बाअदब हो जाएगा तो बानसीब हो जाएगा और उसको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आजकल तरबियत नहीं हो रही है बच्चों को बाअदब बनाने के लिए, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो रही हैं और हम एक दूसरे को ब्लेम इतना ज्यादा देने लगे हैं। अब देखिए क्लास है, बच्चे जो इतने अग्रेसिव हो गए, उसने बच्चे ने कोनी मारी, दूसरे बच्चे ने डी पेंसिल इसके यहाँ मार दी। अब सेकंड के अंदर काम हो गया ये। अब पेरेंट आके ये कह रहे हैं, मैं उस केस को मैंने बहुत भुगता है कि स्कूल के वो कह रहे हैं कि हम इस टीचर को जो है ना उसको लॉकअप में भेजेंगे। क्या कर रही थी, सो रही थी। अरे सेकंड के भी पता नहीं कौन सा हिस्सा था, तो यूं किया उसने यूं कर दिया। अब क्या सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म होने लगा है। ये हमें सब्जेक्ट आपके साथ दोबारा रखना है। काशिफ साहब जल्दी से इसको रैप अप कर दीजिए। देखिए बच्चों की स्कूलिंग के साथ साथ उनको जो बुक रीडिंग या किताबें पढ़ना उसकी तरफ भी लगाएं। जितने वो लगेंगी, ये जैसे कह रहे हैं शरारतें इससे थोड़ा सा कम होंगी। शऊर बेदार ही किताबों से होता है, ये इस तरफ लेके आना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त के लिए। एक ब्रेक यहाँ आ गया, लेकिन बहुत से नए पॉइंट्स हमें मिल गए। तो खालिद साहब आगे के लिए तैयार है ना आप? हम जरूर इनसे डिस्कशंस करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज, गेस्ट चेंज। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। बहुत मुझे खुशी हुई और आप यकीन करें कि हर घर से हर फर्द की दुआ आपके साथ थी, अपनी टीम के साथ थी, जिसका मतलब ये है कि मेरी भी हर लम्हा दुआ आपके साथ थी और पाकिस्तान के साथ ही दुआ थी कि पाकिस्तान अल्लाह करे कि मैच जीते। मैं आपकी इजाजत से ऐलान करना चाह रहा हूँ, सरफराज बिकम द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भरोसा किया और टेस्ट टीम में कैप्टनशिप दी। आमिर ने स्पेल किया था 3 जो आउट किए थे, तो वहाँ एक ऐसी फील आई थी कि यार अभी मैच हमारे हाथ में। हम हर मैदान के फाते हैं, अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर हेडलाइंस के साथ मैं हूं ज़िया रहमान।
وزیر اعظم محمد نواز شریف تاجکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوشنبے روانہ. وزیر اعظم صدر امام علی رحمان کی دعوت پر تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں. خواجہ آصف خرم دستگیر سرتاج عزیز دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم محمد نواز شریف اور تاجک قیادت کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی. تاجکستان کاسا 1000 کے رکن ملکوں کے سربراہ اجلاس کی میزبانی بھی کرے گا. اجلاس میں پاکستان، افغانستان، کرغزستان اور تاجکستان شریک ہوں گے. دوشنبے میں پاکستان، افغانستان اور تاجکستان پر مشتمل تفریقی اجلاس بھی ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں وزیر اعظم آفس میں شاندار استقبالیہ تقریب. آج ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے. امن و امان کی بہتر صورتحال کے باعث ملک میں توانائی اور سیاحت کے شعبوں کو فروغ ملا. ترقی کا یہ سفر جاری رہا تو دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا. وزیر اعظم محمد نواز شریف. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. کراچی میں امن و امان اور صوبے کی داخلی صورتحال پر بریفنگ. اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور کراچی آپریشن کا جائزہ. ریاست کی مؤثر عملداری سے ملک میں دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے. آرمی چیف کی متعلقہ فریقین کو رابطے بہتر بنانے کی ہدایت. مریم نواز کے خلاف 1 سال سے سازش کی جا رہی ہے. پیناما کیس میں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے. حسین نواز اور مریم نواز کے ماضی کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. لیا میں کروڑ روڈ پر مسافر بس تیز رفتاری کے باعث درخت سے ٹکرا گئی. 12 افراد جاں بحق، 25 زخمی. وزیر اعلی پنجاب کا حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. شمالی کوریا کا میزائل تجربہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب. تجربے پر امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا شدید رد عمل. شمالی کوریا سے تجربات بند کرنے کا مطالبہ. افغانستان میں قیام امن سے خطے میں استحکام آئے گا. روس کی پاکستان اور افغانستان میں مصالحتی کردار اور 1 روڈ 1 بیلٹ منصوبے پر چین کی تعریف. شام کی صورتحال کا مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کیا جائے. روس اور چین کے صدر کی ماسکو میں ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری. چین کے مختلف صوبوں میں شدید بارشیں، 27 افراد ہلاک، 8 لاپتہ. شدید بارشوں سے 1 کروڑ 10 لاکھ افراد متاثر. امدادی کارروائیاں جاری. ویتنام کی دارالحکومت ہنوئی میں شدید فضائی آلودگی. 2030 تک موٹر سائیکل چلانے پر پابندی آئے. 70 لاکھ کی آبادی والے شہر میں 50 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں ہیں. کاروں کی تعداد صرف 5 لاکھ ہے. چیئرمین پی سی بی کا سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا بھی کپتان بنانے کا اعلان. سرفراز احمد اب تینوں فارمیٹس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے. شہریار خان. خواتین کرکٹ ورلڈ کپ. پاکستان اپنا چوتھا میچ آج آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا. قومی ٹیم کی لیسٹر میں بھرپور پریکٹس. میچ دن 2:30 سے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست. کرغزستان میں جاری ACBS سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کی فائنل میں رسائی. فائنل میں آج پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش کا امکان. بہاولپور اور ساہیوال ڈویژن میں بھی بارش کی پیشگوئی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और अब जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साइकियाट्रिस्ट। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर वजाहत से पहले तो हम जो अपने पिछले सेशन में बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, ऑब्वियसली ये भी उस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसी की कनेक्टिविटी में एक बहुत ही अच्छा और सेंसिटिव टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट किया जो आज ये लेकर आए हैं। तो आप ही खुद बता दीजिए कि आज हम किस हवाले से डिस्कस करने वाले हैं आगे। हाँ, बेसिकली आज हम ये बात करना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है वो इतना सुपरफिशियल और ऊपरी हो गया है कि उनका सारा ताल्लुक सिर्फ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस तक ही महदूद हो गया है। उससे आगे वो उसको जानते नहीं है कि ये बच्चा कौन है, क्या करता है, क्या कितना सेंसिटिव है, कितनी मुश्किल हालात में पड़ रहा है। और जब ऐसे बच्चों के ऊपर टीचर्स सदुपयोग करते अच्छा, हैं। ये हमने वीडियो भी जो एक कल हमने देखी थी और सिलेक्ट किया था, ये एक वीडियो है कि बच्चा स्कूल लेट पहुंच रहा है जी, हर दिन लेट पहुंच रहा है और हर दिन उसके टीचर जो हैं उसको मार रहे हैं। ये आप देखिए, ये होता ही है कि हर दिन वो स्कूल आया, हर दिन उसको पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि वो लेट आ रहा है। अब ये तीसरा दिन है। अब ये देखिए कि बच्चे की किस कदर आदत बन चुकी है हाँ। कि मैंने तो जाके पिटना है पहले। हाँ, ये बड़ी ही दिल को लगने वाली वीडियो है। ये तीसरा दिन भी हो गया, हर दिन यही होता रहा भारत इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये टीचर हैं, राइट? ये एक पहलू है जो कि इत्तेफाक से उनको पता चलता है। ये टीचर हैं और ये देखते हैं कि वही बच्चा जो रोज उनकी क्लास में आके पिट रहा है, जो रोज लेट हो रहा है, बेसिकली वो सुबह में अखबार फरोशी का काम करता है। बताएं जरा। हाँ, और ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चा पहले अखबार डिलीवर करता है घरों में जाके और उसके बाद स्कूल जाता है। और जब तक इसके टीचर को ये बात पता नहीं थी, जब तक ये रोज स्कूल जाके उसकी पिटाई हो रही थी, रोजाना पिटाई हो रही थी। ये देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ऐसी चल गई हैं जिसमें ये आता है कि भाई जो चीज आपको नजर आ रही है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो किताब है उसके ऊपर की जो स्किन है ना, उससे आप अंदाजा मत लगाइए कि किताब के अंदर क्या है। बेशक। हाँ, देखिए, जब हम भी स्टूडेंट्स थे और हमने भी अब ये एंड है जब टीचर ने असलियत देख ली। ये वीडियो ऐसी है कि ये सोशल मीडिया पे है, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। अभी तो हमने ड्यूरिंग द प्रोग्राम ये चलाई है कि जब तक नहीं पता था, जब तक जाहिर है उस्ताद उसको रोज आने की वजह मालूम करने की कोशिश नहीं करते थे, बस उसे डांटते थे या डपटते थे या मारते थे। जी, ये जो वीडियो से हमारा जो मैसेज है बेसिकली वो यही है कि टीचर को टीचर की तरह होना चाहिए। टीचर को कहते हैं कि आधा माँ बाप के एक दर्जा है। माँ बाप के दर्जे को अगर देखा जाए तो फिर तो बच्चे के लिए हर चीज का एहतमाम करना या एहतियात करना उनके लिए जरूरी है। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें आज तक याद है जो सख्त टीचर था, जो हमारे साथ ज्यादती करता था, जो हमारे साथ बिला वजह पिटाई करता था, वो हमें आज तक याद है। और वो एज ऐसी थी कि वो टाइम के बाद हमारे परसेप्शन लाइफ के बनना शुरू हो गए थे। एक बच्चा जो अखबार बेचता है और उसके बारे में कोई जानता नहीं है कि वो अखबार बेचता है, उसके बावजूद वो रोज पिटता है, ऐसे कितने बच्चे हमारे माशरे में हैं जो कि स्कूल्स के अंदर उन प्रेशर्स का शिकार हैं। और दूसरा हम बात करते हैं दहशतगर्दी की, हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की। ये जो टाइम होता है, ये जो एज होती है, यहाँ से बच्चों का दिमाग जो है वो बागी होना शुरू हो जाता है। जब वो देखते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जब वो देखते हैं कि हमारे साथ पिटाई हो रही है, कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा, तो हर 10 में से 2 बच्चे नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं और वो फिर अपने आप से तहैया करते हैं कि हमने नहीं छोड़ना। अभी कुछ अर्से पहले एक वाकया हुआ था, मैं रिहैब में बैठा था, तो एक एडिक्ट ने किसी का कत्ल करके नशे के बाद वहाँ पे वो आया हुआ था। तो लोग उसको गालम गलोच कर रहे थे, फैमिली वाले भी। जब उसके मेरे सिटिंग स्टार्ट हुई आफ्टर 1 मंथ, जब उसका नशा निकला तो कहता है कि हाँ मैंने उसको मारा है। तो मैंने कहा भाई तुमने उसको क्यों मारा, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो कह रहा है वो जब मैं एडमिट था तो वो मुझे कभी भी उसने मुझसे तमीज से बात नहीं की और हमेशा मेरे साथ वो बहुत बेइज्जती करके पेश आता था और मैं नशा छोड़ना भी चाहता था, सब कुछ सही था, लेकिन मैंने मुझे उसके इतना गुस्सा था कि जिस दिन मैं यहाँ से डिस्चार्ज हुआ मैंने नेक्स्ट डे उसके ऊपर हमला किया और मैंने उसको खत्म कर दिया और वो उस पर बहुत ज्यादा रिग्रेट भी कर रहा था। तो बात यह है कि आपके पास
جب پاور ہوتی ہے، جب آپ کے پاس لوگ سبارڈینیٹس ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی پہچاننے کا وہی ٹائم ہوتا ہے کہ وین یو ہیو پاور اینڈ یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ناسٹی وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس جب پاور آتی ہے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کمپاؤنڈر ہو. ہر آدمی اپنے سے نیچے جو ہے نا جہاں اس کو پاور فیل ہوتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بیج بو رہے ہوتے ہیں. اور آج آپ کال کر کے بتائیں، یہ تو ہم نے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ریلیشن شپ پہ بات کی ہے، لیکن آپ نے کہاں غلطی کی؟ ہم سب نے کی ہوتی ہے. مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کسی کی ڈانٹ لگائی تھی جو کہ اس کے فائدے کے لیے لگائی تھی، اور جو میرے دل میں تھا وہ بول دیا تھا، مگر جب اسے موقع ملا تو اس نے مجھے تو ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو جو پیچھے پیچھے کرنا تھا وہ کیا. تو ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ کب کس نے کیا کیا جس سے آپ نے لرن کیا کہ دیکھو ان چیزوں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، وہ آج آپ ہمیں کال کریں اور بتائیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کے وہ اپنے ٹیچرز کو آج تک یاد کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ٹیچرز بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے. اور ایک دفعہ ان کے میرے والد صاحب کے ٹیچر نے ان کو دیکھا کہ وہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور ویسے بہت کمزور سے تھے اور سارا، اور جو پچھلے وقتوں میں میرے خیال میں لوگوں نے بہت اسٹرگل کی تھی تو ان کو ہر چیز بڑی مشکل سے ملتی تھی، ایکسیسیبلٹی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ ان کو بلا کے پوچھا کہ بیٹا تم یہ باڈی بلڈنگ کرتے ہو، تمہارا کھانے پینے کا کیا شیڈیول ہے، دودھ پیتے ہو، یہ سارا کچھ. اینڈ دین جہاں کہیں پرابلمس تھے میرے فادر کو وہ ان کے ٹیچر نے دور کیے، فائنینشلی بھی. بتائیں کتنی بڑی بات ہے. آج وہ اس ایج میں بھی اپنے ان ٹیچرز کو دعائیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ جو بنے وہ میرے خیال میں ان کے تو والد صاحب بھی نہیں تھے، میرے دادا بھی نہیں تھے، لیکن جو وہ بنے تو اس میں بہت بڑا رول ان کے ٹیچرز کا تھا. بالکل. ٹیچرز، آپ کے باپ کا بچہ ٹیچرز کے پاس 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے. ایک ٹیچر جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے. آپ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے ٹیچر پہ. سب سے پہلے ٹیچر سے آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم لوگ اپنے گڈ لکنگ ٹیچرز کو دیکھتے تھے ہے نا، اور گڈ لکنگ ٹیچر کو دیکھ کے کہتے تھے یار یہ شرٹ بہت اچھی پہنا ہے، ایسی شرٹ پہننی ہے. ٹیچرز کو دیکھ کے ہم آئیڈیلائز کرتے تھے. کبھی کوئی بہت ہی میٹھی اسپوکن ٹیچر ہوتی تو کہتے تھے کیا مزے سے بات کرتی ہے. اچھا، اور وہ بوائز کو امپورٹینس اس طرح دے بھی دیتی تھی. جب آپ ان سے فیسینیٹ ہوں گے. ہمیں دیکھیں اب زمانہ بیت گیا، لیکن مجھے آج تک یاد ہے مس فوزیہ تھیں، سائنس پڑھاتی تھیں، بہت گڈ لکنگ تھیں، بہت نفیس بات کرتی تھیں، اور ان کا ڈانٹنا بھی ایک ایسا ہوتا تھا کہ ان کی ڈانٹ دکھانی بڑی بے عزتی ہو جائے گی کیونکہ وہ عزت سے ڈانٹتی تھی اور ان کے سامنے ہماری ریپو بہت ہائی تھی. تو ہمیں یہ تھا کہ دوسری ٹیچر ڈنڈے مار لے لیکن مس فوزیہ سے ڈانٹ نہیں کھانی. بات یہ ہے کہ واٹ وی گیو الٹیمیٹلی وی گیٹ. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے رولز ہیں، جو بھی ہم جہاں پہ رولز کرتے ہیں وہاں پہ کوئی اچھا کام کر کے اٹھیں تاکہ پیچھے ہم کوئی دو دشمن نہ بنا رہے ہیں. اور اپنی رسپانسبلٹی دیکھیں کیونکہ اس کا صلہ آپ کو ملتا ہی ہے اگر آپ کسی کے لیے اچھا کریں. ہمارے ساتھ ملتان سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. سو سوری، ہم اتنا گفتگو میں اتنا زیادہ ہم اس میں انوالو تھے کہ زیادہ ویٹ کر کے ان کی کال ڈراپ ہو گئی. لیکن یہ چیز آج آپ نے بتانی ہے اور ریئلائز کریں، سوچیں، کیونکہ یہ ریئلائزیشن بھی بڑی دیر میں آتی ہے کہ ہم کسی کو کیا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں یا کیا چیز کر رہے ہیں. اور اسکولس کے بارے میں میں یہ چیز جاننا چاہتی ہوں ڈاکٹر وجاہت، آپ کو کیا لگتا ہے، تھوڑی سی کانٹیکٹ سے، تھوڑی سی سائیکالوجی سے ہٹ کے بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کے بچے گھر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میری ٹیچر نے یہ روڈ بات مجھ سے کی ہے جو ان کو ڈی مورلائز کرتی ہے، تو کیا آپ کو جا کے ٹیچر سے بات کرنی چاہیے یا بچے کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے؟ ٹھیک، دیکھیں یہ اٹس اے ٹرائنگولر لو افیئر بیسیکلی. دیکھا جائے یہ ایک ایسا محبت ہے جو کہ 3 کونوں پہ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ سب سے اسٹرانگ ہے، اور اگر آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں تو یہ تینوں جگہ پہ نفرت پھیل ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا، کبھی بھی کوئی بھی کونا سیف فیل نہیں کرے گا. تو میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، میں جاتا ہوں کاؤنسلنگ کرنے اسکولس کے اندر، تو جتنا اچھا ٹیچر اور ماں باپ کا ریلیشن ہوگا اتنا ہی اچھا بچے کا ریلیشن شپ اسکول کے ساتھ ہوگا. اور اگر آپ کا بچہ اسکول میں کوئی غلطی کرتا ہے اور آپ کی ٹیچر کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اگر اسے ڈانٹ بھی دیا تو آپ اس کو ایک اپنی ہیلپنگ ہینڈ ہی سمجھیں گی کہ جو بات میں نہیں کر سکی وہ فلاں ٹیچر نے کر لیا. لیکن آپ دونوں سے مقابلے کپڑوں کا کر رہی ہیں اور ایک اندر سے ایک نفرت ہے یا ایک جیلسی ہے. آپ یہ بھی دیکھتی ہیں اسکولس کے اندر کے ٹیچرز
जो पेरेंट्स हैं उनके साथ इतने खुश नहीं होते दिल से अंदर, ऊपर से तो जाके बैठ जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, लेकिन फ्रॉम इनसाइड दे आर नॉट हैप्पी। अच्छा, उसकी भी वजूहत होती है ना, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब थे ना? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी हेलो जी, टीवी से मेरी आवाज सुनिए। मैं कुछ बात करना चाहूँगा। कीजिए बात। असलम साहब, फोन से मेरी आवाज आपको आ रही है ना? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो 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 सो सॉरी, कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी हमें। आप टीवी से आवाज ना सुना कीजिए, वरना इसी तरह होता है, इतनी देर वेट भी करते हैं और फिर मसला होता है। अच्छा, होता ये है कि टीचर्स कहीं अंदर खाने ना आपके बच्चे को भी ऐसी बातें कह चुकी होती हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं होती। सही बात। वो भी कोई हस्बैंड से लड़के आई होती हैं या किसी और का गुस्सा होता है, ये भी अब बहुत होने लगा है। देखिए ना, टीचर्स हैं, हम हैं, डॉक्टर्स हैं, होस्ट को मतलब ये अपने घर के हालात ये इस कुर्सी पे नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते आज मैं अच्छी इसलिए लग रही कि आज मेरी लड़ाई हुई है। इसी तरह एक डॉक्टर जब क्लिनिक जाके बैठता है तो वो भी शो स्टार्ट कर देता है, और वो डॉक्टर अपने पेशेंट के सामने वो ये नहीं कह सकता कि आज मैं तुमसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरे घर क्या हुआ है। अच्छा, फिर आपका पार्टनर जो है, हमें तो ये ना, हम यहाँ पे बैठ के खुश मिजाजी से प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं नहीं तुम तो बीमार नहीं थी। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, तुम्हारा तो मूड खराब नहीं था, तुम्हें तो असर ही नहीं हुआ। तो असर भाई हो रहा होता है, मगर वो टीवी के सामने थोड़ी हो रहा होता है। ड्यूटी का हिस्सा है कि हम आपको स्माइल दें, हम हमारा जेस्चर ऐसा हो कि लोग देख के हमें खुश हों। अब हमारे लोग घर में बैठ के ये ना बोले ना कि लड़के गए कितना खुश लग रहा है। तो ये नोबल प्रोफेशन है, ये मैं आपको साफ बता दूं, ये बड़े नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे आपने अपने मूड को स्टेबलाइज करना पड़ता है। और टीचर का भी ऐसा ही है, जब वो घर से कॉलर आ गए, कॉल हमको ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसरत बाजी कैसी हो? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हो सकता है आप मुझे पहचानते भी हो, मैं इब्राहिम साहब का शागिर्द भी था, असद एडुकेटर। अच्छा जी जी, आप मेरे वालिद साहब के स्टूडेंट थे एसएम लॉ कॉलेज में। एसएम लॉ कॉलेज में मैं स्टूडेंट था और आपके गर्दी में आया था। अच्छा अच्छा। जेल में होता हूँ, ये बच्चों से जो बात हो रही है, सबसे पहले तो ये। हाँ हाँ बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि जो पढ़ता है और बच्चे पढ़ते हैं जबरदस्ती तो उसको पढ़ा नहीं सकते कोई। अच्छा, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि टीचर्स का कितना रोल होता है स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में। अगर टीचर की आपसे दोस्ती हो जाए तो आपके कोई ऐसे टीचर हैं? जी जी जी, टीचर की अगर दोस्ती हो जाए इस चीज पे तो क्लास में 25 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, तो सबके साथ तो दोस्ती कर ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि वो दोस्ती से दूर ही रहे तो अच्छा है। और वो टीचर बन के अगर उसको पढ़ाए तो उसका रोब भी रहता है और उसको मतलब वो समझता है कि दबाव के साथ मैं पढ़ूंगा। अगर आप मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे तो वो ये भी सोच सकता है कि चलो बच जाऊंगा कुछ। ये वो दोस्ती की बात नहीं कर रहे, आप अभी भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? खवातीन पार्क में होती है। हाँ, मैं वीर में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अम्मी से तो मेरी बात भी कभी कभी आपकी हो जाती है, मैं फोन भी करता हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल में आज मेरी अम्मी जो है ना, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ भाईजान पहली बात तो मैं सोच रहा हूँ लाइव शो है, लाइव में मैं क्या बोलूँ। मैं भी बहुत कुछ लाइव में क्या बोले। हम उस दोस्ती की बात नहीं कर रहे जो खवातीन पार्क में होती है, जो कैंटीन में होती है। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा उस्ताद और स्टूडेंट के बीच में एफिलिएशन होती है कि वो किस हद तक उसको जानता है कि इसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी क्या है, कि इसका ड्राइंग पसंद है, ये फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। अगर आपको ये बातें पता चल जाए तो आप बच्चे से काम भी ले सकते हैं मजे की। ये वो वाली मोहब्बत ये वो वाली मोहब्बत है। हम लोग तो बहुत सीरियस हो जाते हैं हर मामले में। समझ नहीं आता ना वो बात है, पंखा तेज फुल या तो बंद। हमारा माशरे में ये बड़ा मसला है। हम क्लिनिक पे होते हैं, किसी को बोलते हैं तो फुल कर देता है वो, तो कहते कम कर दे तो बंद कर देता है। बीच में कोई ग्रे एरिया लोग को समझ नहीं आता।
तो बड़ी मुश्किल से मियाना समझाना रवि जो है वो रखने की जरूरत है। तो ये वो वाली मोहब्बत नहीं है, और वो मोहब्बत हो भी नहीं सकती। वो चले किसी और लेवल पर लोगों की शादियां भी हो गई हैं, लेकिन वो एक ग्रोन अप दूसरा लेवल होता है तो हो जाता है। लेकिन इस लेवल पर जो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं या मेच्योर टीचर्स की, वहाँ ये वाली मोहब्बत नहीं। लेकिन जो मोहब्बत उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान होती है वो बहुत पाकीज़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोहब्बत होती है। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 40 साल टीचिंग की। तो पहले मैथ्स पढ़ाते रहे, फिर प्रोफेसर बने, फिर स्कूल के प्रिंसिपल बने, और मैंने उनको मैंने अब कुछ स्टूडेंट्स की फीसें भरते भी देखा है। और वो मेरी अम्मी से बात कर रहे होते थे कि उसके पैसे कम पड़ गए तो हमारी जेब से निकाल के डाल दो, उसके ये है मसले। तो मैं देखता था, ब्रॉटअप में बहुत कुछ सीख लेता है इंसान। और वो क्रिकेट की टीम थी उनकी अपने स्कूल की, तो जब वो क्रिकेट देता तो वो बच्चों से ज्यादा एक्साइटेड मुझे नजर आते थे रात को कि भाई वो हमारे कबाब बांध देना और फला कर देना। तो ये जो डेडिकेशन टीचर्स में थी और जो कि हमने अपने माँ बाप से सीखी भी है, तो वो सुबह जाते थे तो उनके स्टूडेंट्स उनके साथ ऐसे चलते थे जैसे कि एक टीम का कप्तान जा रहा है, पीछे 20-25 लड़के हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। जब तक आप डीपली इन्वॉल्व नहीं होते किसी के अंदर, आप भी तवक्को नहीं कर सकते कि आपको वहाँ से वैसी चीज मिलेगी। क्या हमारे पास ब्रेक है या कॉल है? मैं थोड़ा ओके भैया कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने ये देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, जिस शो में देख रहा हूँ कि मेरे एक टीचर थे अब्दुल अजीज साहब, तो मुझे आज भी वो याद है कि वो कभी मारते नहीं थे। मतलब तो आपको वैसे जब आप कोई कंप्लेंट है उन्हें या कोई ऐसा है तो वो आपको मतलब ऐसे शर्मिंदा करते थे कि वो शायद मार से ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल। मतलब इस तरह की मेरा ख्याल होना चाहिए। और पहले टीचर्स थे, आजकल टीचर्स बिजनेसमैन है, आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फर्क आ गया। इसमें हमें इंसानी तौर पर सबको कोशिश करनी पड़ेगी। आई थिंक जो टीचिंग है अब आजकल, तो आपको भी पता है कि हम कुछ और बनना चाहते हैं, ड्यू टू सर्टन रीजन हम डिसाइड करते हैं कि चलो टीचिंग की जॉब कर लेते हैं, या कुछ और बनना चाहते हैं, अचानक एक्टिंग में आ जाते हैं। आजकल बहुत फास्ट लाइफ है, कैरियर चेंज होने में देर नहीं लगता। तो मेरा मशवरा है कि हमारे टीचर के जो भी अपॉइंट होता है उसकी कोई 1 महीने का इंडक्शन होना चाहिए, जिसमें डू एंड डोंट्स का जरा टीचर को बता दिया जाए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रही हूँ लोग आप तक अपनी बात पहुँचा दें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बोल रहा हूँ पूरा। जी। अच्छा, हमारे ये टीचर थे नजीर साहब, उनका नाम था, बहुत अच्छे थे। ये वजह था कि मैं एक बिल्कुल गरीब आदमी था। मेरे पास ना वो जब 7वीं जमात में पढ़ता था उनका दिमाग खराब हो गया था, जहनी तवाज़ुन खराब हो गया था। और वो हमारे जो टीचर थे वो मेरी फीस भी अदा वो किया करते थे। और आगे जाके 7वीं से जब आगे गया 8वीं में, तो हमारा टीचर एक ऐसा बदकिस्मत मुझे मिला कि उसने मेरे को टाइफाइड बुखार हो गया और मैं स्कूल नहीं जा सका। जब मैं स्कूल में गया हूँ तो उसने पूछा नहीं है, उसने बोला जिसने काम लिखा है वो खड़े हो गया, जिसने लिखा वो बैठे रहो, जिसने नहीं लिखा वो खड़े हो गया। मुझे तो पता ही नहीं करना, मैं बैठा रहा। उस बदबख्त ने मेरे साथ ये किया कि उसने मेरे हाथों पे 13 डंडे लगाए। 13 डंडे लगाया। उसके बाद मेरे को स्कूल से निकाल दो, तुम बदतमीज हो, तुम ये करना नहीं मानते। उसका दूसरा भाई था, वो मेरे को मिला रास्ते में। हमारा स्कूल जो 10 किलोमीटर हमारे गांव से दूर था, हाई स्कूल। ठीक है। 10 किलोमीटर दूर था। और वो टीचर जो है ना उसने मेरे को स्कूल से निकाल दिया। वो बोलता है कि तुम इस काबिल नहीं हो पाएंगे, तुम्हें पता नहीं है। मैंने उनको बोला कि मैं तो आया ही नहीं था। मेरे को बोलता ना, जब मैंने आपको बोला कि तुम खड़े क्यों नहीं हो, तुमने काम नहीं किया था। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आया ही नहीं। लेकिन उसने मेरी बात भी सुनी, मेरा मुस्तकबिल अपनी खराब कर दिया। ठीक है। आज तक देखिए इनको याद है, आज तक याद है। और ये वाकई जब हुआ होगा तो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, कहा हो रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी। आपका टॉपिक बड़ा जबरदस्त है आज तक। शुक्रिया। तो मैं अभी लाइव देख रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और डॉक्टर साहब भी बनते ना बड़े अगर मुझे इनसे बात पूछनी थी कि क्या किया जाए जो मिसबिहेव हो जाता है, यानी कि आप देखें हमारे भाषा है वो हमें कुछ करने नहीं देते, तो गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है, तो बंदा क्या करे? गुस्से की बात है। आपसे मिसबिहेव हो जाता है या कोई आपसे जब मिसबिहेव कर ले?
नहीं मेरे से नहीं हो रहा होता, मेरे अंदर का जितना आपने बात की मेरे दुश्मन दवाई को हो रहा होता है, कुछ गलत आधा बन रहा होता है। अच्छा ठीक है, ये अगर आप गुस्सा आपको आ रहा होता है, जाहिर है वो बॉइलिंग फैक्टर अंदर होता है और उसके बाद आप किसी को कुछ कह देते हैं तो आपने का दुश्मन क्रिएट हो जाते हैं, तो बंदा क्या करे, ऑल्टरनेटिव में क्या करे? देखिए आप ये जवाब देते हैं लाइफ। बात ये है कि गुस्सा कोई ऐसी लाइलाज या अनकंट्रोल्ड चीज नहीं है। गुस्सा हमें अपने बॉस से क्यों नहीं आता, गुस्सा हमें अपने से ताकतवर इंसान से क्यों नहीं आता। इनफैक्ट गुस्सा आ रहा होता है, ताकतवर देख के हम यूँ जाते हैं, हाँ छोड़े क्या फायदा लड़ने का, लेकिन कमजोर होता है हम कहते हैं मेरे तो गुस्सा ही ऐसा है। ठीक, तो ये गुस्सा चैनलाइज होता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एंगर मैनेजमेंट को अगर आप पढ़ना शुरू करें, आपको पता होता है कि आगे मुझे फायदा देगा, उस पर गुस्सा। बॉस कुछ भी कह ले, आखिर तक वो कहता है एनीथिंग यू वांट टू से, आप कहें नो सर, नो सर, ओके सर, ठीक है, क्योंकि पता है सर अगर मैंने अगर बदतमीजी कर सर तो मैं फारिग हो जाऊंगा। ठीक, घर पहुंचते बीवी मिल जाती है, ठीक है, उस पर वो सारा गुस्सा हम निकाल देते कि पता है ना यहाँ तो कहीं फायर नहीं होना, कोई किसी ने निकालना नहीं है नौकरी से। बात ये है मेरे दोस्त, जहाँ के हम इज्जत नहीं देते या प्रायोरिटी नहीं देते, वहाँ पे हम कहते हैं कि गुस्सा आता है। जहाँ पे हम डरते हैं सबसे पहले और इज्जत करते हैं वहाँ गुस्सा नहीं आता। तो आप सबकी इज्जत करना शुरू कर दें, आपको गुस्सा किसी पे नहीं आएगा। अगर आप चौकीदार की भी इज्जत करेंगे तो उस पर भी गुस्सा नहीं आएगा। चौकीदार रोकता है, हम उससे गुस्सा करने लगते हैं, क्या बात है मेरी शक्ल नहीं जानते तुम, ये नहीं देखा। और अगर पुलिस वाला रोक ले जो सही वर्दी वाला है तो हम उसके सामने बीगी बिल्ली बन जाते हैं। When you don't care about something तो आप गुस्सा ज्यादा कर लेते हैं। बिल्कुल, तो गुस्सा इज मैनेजेबल। द थिंग इज कि आपने सामने वाले को इज्जत कितनी देनी है, ये स्टार्ट करें। 2 हफ्ते के बाद कॉल करें कि आपने गुस्से पे कंट्रोल किया, और खास तौर पे उस पर्टिकुलर आदमी के साथ जिससे आप गुस्सा करते हैं उस पर कितना कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल में लोगों को भी आपकी डिस्कशन बहुत पसंद आई। बड़े कॉलर्स थे हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, कुछ और सोचिए और हमारे लिए कुछ और नया लेकर आइए। एक ब्रेक यहाँ पर है, ब्रेक के बाद शुमाइला नकवी साहबा मेरे सामने मौजूद है। पता नहीं बहुत गुस्से में है आज, आप पे तो नहीं गुस्सा करती हैं? शुमाइला का काम ही गुस्सा करना है, गुस्सा करना है। ओह माय गॉड, मैनेजमेंट का कोर्स कराएं। तो आज जरा शुमाइला क्या लेकर आई है, शी हैज अ टॉपिक टू डिस्कस विद अस। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे गेस्ट भी ओनरशिप लेते हैं। तो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। बहुत खुशी है जी मेरी तरफ से, नौजवानों को, बच्चों को, खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने सबको यहाँ पे बुलाया और हमें इतनी इज्जत दी। बहुत मज़ा आया। आई थिंक पूरा टूर्नामेंट खेलने का फर्स्ट टाइम टीम के पानी में खेल रहे थे। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम को लीड की। पहला मैच हारे तो उसके बाद हुआ क्या? इट्स नॉट ईजी टू कम बैक द वे पाकिस्तान टीम प्लेड। हाफ देखा था मैंने, फिर मैंने शादाब को बोला काश मैं भी आउट हो जाऊं इस तरह। नो बॉल मतलब आउट होने का ख्वाब देखा। मेरे लिए जितनी भी विकेट थी वो सारी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान को विकेट चाहिए थी, पाकिस्तान टीम को विकेट चाहिए थी। तो मेरे जितनी भी विकेट थी सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। आप हमारा साथ ना देते तो वो दिन ना आता और शायद आज का दिन भी ना आता। वेलकम बैक, हमारी वापसी हो चुकी है और हमारे साथ द ग्रेट शुमाइला नकवी मौजूद है। शी इज एन एडवोकेट एंड एन एंकर पर्सन। आप सब इनको एंकरिंग करते हुए भी देखते रहे हैं और रमजानुल मुबारक में भी बड़ी ये एंकरिंग वगैरह करती हैं, लोगों को कभी कभी राशन भी बांटती हैं। खैर, तो आज लेकिन हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इनसे बात कर रहे हैं जहेज के मामले में। बिल्कुल, और जहेज एक ऐसी चीज जिसको हम गलत भी समझते हैं, बट एट द सेम टाइम